Good evening, everyone. So here I am sharing the answer for grade 9 test, which was conducted on 3rd May 2020. First, I'll be giving you the answer of chemistry, then you have maths, then the riddles. What you have to do, once you verify your answer, then you have to send those answers to my personal number. And the way you are supposed to send the answer is chemistry, number of questions, that is, like you can say 10, number of questions attempted, that is 10, or whatever your number, the number of questions correct, number of questions incorrect, and not attempted. And as you know, for every correct answer you're having +4. For every wrong answer you have to deduct your 1 marks, and if you have not attempted, it will be considered to be 0. Similarly, for maths you are having 20 questions, and for your riddles and GK you're having 9 questions instead of 10. It was 9, I think so. Okay. Now, where you don't find any multiple choice, in that case, if your answer is correct, you will take +4. And if it is wrong or not attempted in both the cases, it will be 0. So try to check the answer properly, then frame it nicely, and then post it in my personal number. With this note, I'm starting to share the answer of chemistry. So in chemistry, there were 10 questions. So question number 1, the right option is C. Question number 2, right option is D. Question number 3, right option is C. Question number 4, right option is B. Question number 5, right option is D. Question number 6, right option is C. Question number 7, right option is B. Question number 8, right option is C. Question number 9, right option is D. And question number 10, right option is D. Now we are moving to maths. That was exponent. Okay. There are 20 questions. Question number 1, C. Question number 2, B. Question number 3, A. Question number 4, B. Question number 5, C. C for Chennai. Let it make it easy if you are finding any hearing problem. Question number C, B for Bombay. Question number C, Chennai, C. Question number 8, Bombay, B. Question number 9, Delhi, D. Question number 10, C, Chennai. Question number 11, B for Bombay. Question number 12, C for Chennai. Question number 13, C, C for Chennai. Question number 14, it's D. Question number 15, it's Chennai. Question number 16, it's Delhi, D. Question number 17, Delhi. Question number 18, Delhi. Question number 19, Chennai. And question number 20, Mumbai. Now your brain tester, your riddles were there. The first answer for the riddle is 1. The answer is 1. Question number 1, the answer is 1. Question number 2, again answer is 1. Question number 3 was an interesting question. Those who have seen their gearbox in the car, it was, the answer is R, alphabet R, reverse gear. Question number 4, 32 number is missing if you check that. Question number 5, there was a figure, okay, which I will share later on. You have to express that figure into 4 figures. So when you will be submitting your answer, I need to see that figure exactly matching or not. Question number 6, the answer is 2. Question number 7, you know, blackboard or chalkboard. Question number 8, you cannot touch with your right hand, that is right hand elbow. Question number 9, the answer is 69. And here it's the answer of question number 5. You are supposed to draw or convert that figure into 4 figures, right? This is the answer of question number 5. So please go through all the answers properly and then send according to the format which I have guided you. And today I was not able to take the class, nothing to worry about that. And tomorrow we will start biology. In the biology, you know, this chapter that is called cell and structure, right? What are the things you're supposed to know? You know what is cell,
It is a structural and functional unit of life. In this topic, we will be understanding who discovered cell, where from he got that idea, where from he done that invention, discovery you can say. Then who proposed cell theory, like Seldin and Swan has done this. Who modified that? Rudolf Virchow, I think so. Then we will be understanding the content that is initially, the cell was unicellular, multicellular. We all know unicellular organisms are those organisms which are single celled. We are multicellular organism. The advantage of multicellular organism is that there is a division of labor. आज आप जानते हो जो जॉइंट फैमिली होती है ना, अगर उसमें कोई ओकेजन होता है तो उनको बाहर के लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक बंदे को वो ड्यूटी असाइन कर देते हैं. लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली होता है, किसी बिटिया की शादी है तो उनके पापा की पूरी जिम्मेदारी रहती है. एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट tiredness, okay, which is not observed in the case of multi. Similarly, we are multicellular organisms. We have got numerous cells, tissues, then organs, then organ system, and they all have assigned their jobs. And that's why जब हम खाना खा रहे हैं ना, तो हमें सांस रोकने की जरूरत नहीं है. या हम जब सांस रोक ले पता चला, या जब हमको सांस लेना है तो कुछ खा नहीं सकते, ऐसा नहीं है. So this is what we'll be doing. Then you'll be hearing the name prokaryotic and eukaryotic. Primitive organisms, prokaryotic. We are eukaryotic organisms. You must have heard the name autotrophs. Plants are called autotrophs. We come under the category heterotrophs because we cannot synthesize our food. लेकिन heterotroph में भी पता हमारा जो category है, which we are like amoeba. Have you heard? You must have heard the name amoeba. Amoeba, sorry. It engulfs the solid food and it's a unicellular organism. But the process of engulfing the food, solid food रहता है, engulfing को ingestion कहते हैं. हमारे साथ भी वही होता है, ingestion. उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन. वो भी डाइजेशन करता है, हम भी डाइजेशन करते हैं. थर्ड प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन. हमारे केस में एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. फोर्थ, एक बार जब खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो उस खाने को पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम है. And you heard the name arteries. In our case, oxygenated blood food को भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो फूड एब्जॉर्ब फूड के बाद एसिमिलेशन होता है. और जब ये सारा काम हो जाता है तब अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से थ्रो भी किया जाता है. दैट इज कॉल्ड इजेशन. इस पूरे को एक क्लब्ड फॉर्म में बोला जाता है होलोजोई. उसी तरह हेट्रो में आता है सैप्रोफाइट्स. दोज हु फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग. Dead and decaying, like vulture, like fungus. और एक आता है पैरासाइट्स. ये कोरोना वायरस एक पैरासाइट ही तो है. आज आपके घर में आ भी रहा है और आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है. अगर आता गेस्ट की तरह रहता, हम उसे इज्जत देते. यहाँ तो हमारे बॉडी में आकर अटैक करना चाहता है. इसलिए जिन बंदों की इम्यून सिस्टम WBC सोल्जर हमारा है, सोल्जर, जितना अच्छा से सोल्जर अगर काम कर रहा होता है ना, उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, वो फाइट करने की कैपेबिलिटी रखता है. और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्लीज इनहांस योर इम्यून सिस्टम, टेक केयर ऑफ योर डाइट, टेक केयर ऑफ योर फूड हैबिट, अवॉइड दोज फूड हैबिट्स व्हिच मे बी गुड इन टेस्ट बट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स. उससे आपका बेली तो भरता है, स्टमक फिल तो होता है, लेकिन न्यूट्रिशन बैलेंस्ड नहीं होता. उसके बाद आप इस टॉपिक में देखोगे, नाम सुनोगे, केमिस्ट्री में डिफ्यूजन सुना, यहाँ भी डिफ्यूजन सुनोगे और दिमाग में कंफ्यूजन आएगा. वहां डिफ्यूजन का मतलब था इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ओके, इन बिटवीन, लाइक अपना एरोमा, अगरबत्ती का जो या खाने का खुशबू एयर्स में मिक्स हो गया. दैट वाज डिफ्यूजन. हियर डिफ्यूजन का मतलब होगा देयर विल बी, अगेन देयर विल बी, द डिफ्यूजन मींस मूविंग a gas or anything from a region of high pressure to low. अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये तब हो पाता है जब डिफरेंस इन प्रेशर होता है. तो उसको ब्रॉडर सेंस में हम कहेंगे डिफ्यूजन. और जब फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में जब चीजें ट्रांसफर होगा तो हम उसी को देखेंगे ऑस्मोसिस. आप अगर किशमिश को पानी में रख दोगे ना थोड़ा देर, तो वो जो किशमिश है ना फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, यानी कि उसने बाहर के मीडियम से पानी अंदर लिया. स्वेल, ओ स्वेल,
hypo, look at the expression of mind, hypo, swell, मोटा हो जाना। अगर आपको पानी में फेंक दिया जाए स्विमिंग पूल में और आपको तैरना नहीं आता है तो थोड़ी देर में आपकी बॉडी ऊपर आ जाती है और फूल जाती है, यानी कि जो एक्सटर्नल मीडियम था उसमें कंसंट्रेशन आपके अंदर से ज्यादा था। एंड लिक्विड always flows from a region, or anything always flows from a region of higher concentration to lower concentration। तो आपके बॉडी में पानी आता है और फूल जाते हैं और उसे कहते हैं हाइपो। अगर हमने अंगूर को, ग्रैप्स को थोड़ा देर धूप में रख दोगे ना तो सिकुड़ जाता है, सॉर्ट ऑफ किशमिश लगेगा, लेकिन वो किशमिश मजेदार खाने वाला नहीं होता, प्रोसेस्ड नहीं होता है। तो हुआ क्या, उसके अंदर की जो पानी थी ना किसमें, ग्रैप्स में, वो बाहर चला गया। यानी कि जो बाहर था वो ड्रायर मीडियम था और वो अंदर से लिक्विड मीडियम था, ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ग्रैप्स के अंदर था, तो उसमें से पानी निकल गया, पानी निकला, हाइपर आया, हाइपो। और अगर दोनों तरफ बराबर कंसंट्रेशन रहता, इधर से भी आया इधर से आया, आएगा ही नहीं, कंसंट्रेशन इक्वल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस पे एक्टिविटीज यही वाले आते हैं जो एनसीईआरटी बुक में है। हाइपो याद हो गया तो हाइपर याद हो गया, और जो बराबर है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरह इसके बाद आप इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। आपने सेल का नाम सुना, सेल में न्यूक्लियस होता है, जो पूरा फ्लूइड होता है ना उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसको दो हिस्से में बांटा जाता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है ना सर्कल के अंदर, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस की सरकमफ्रेंस है, पेरिफेरी से लेकर, और जो सेल है उसका जो पेरिफेरी, उसके बीच का जो जगह है, उसमें जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर बनता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे अंदर यूकैरियोटिक है, जितने भी हमारे अंदर ऑर्गेनल्स है ना, उनको अपनी अपनी एक बाउंड्री मिली हुई है अंदर ही। एंड दीज ऑर्गेनल्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे नाम आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसमें एक स्मूथ होता है, एक रफ। रफ उसका नाम पड़ता है जिसमें खुरदुरापन है, यानी कि यहाँ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कहते हैं क्योंकि उसके पास खुरदुरा पार्टिकल है, राइबोसोम्स। पता है जिसके पास राइबोसोम्स होता है ना प्रोटीन बना सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्मूथ अगर है यानी कि राइबोसोम्स नहीं, तो वो क्या करता है, वो लिपिड सिंथेसिस करता है। और अगर कभी किसी ने जहर पीने की कोशिश करी और मरा नहीं, तो हो सकता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जहर हटा देता है। तो इसी तरह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे। फिर है गोल्गी एपरेटस। जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है ना, उसको गोल्गी एपरेटस का काम है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग करना। जैसे कोई भी माल कहीं से आया, आने के बाद उसको प्रॉपर डिस्पैचिंग करना है, नहीं तो वो माल का कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। सो दैट विल सपोर्टेड बाय गोल्गी एपरेटस। कैमिलो गोल्गी ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं आत्महत्या बैग, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, फिदाइन हमला। कुछ ऐसे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे टेररिस्ट, हमारे बॉर्डर में हमारे सोल्जर खड़े हैं, तो वो अंदर आना चाहता है, हमें पता अगर वो अंदर आएगा तो कितनों को नुकसान पहुंचाएगा, तो हमें उसे वहीं वहीं रुकने की कोशिश करते हैं, और इन द प्रोसेस हम उसको मारने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी उस प्रोसेस में वी हैव टू engulf those poisons and then we will। so जो बॉडी के अंदर वियर एंड टियर भी होता है, उस वियर एंड टियर को अगर हमने इंगल्फ किसी ने नहीं किया
तो वो जगह रोक लेगा, वो ये करता है लाइसोसोम। उसके बाद हमारे पास पावर है, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो जगह है जहाँ एटीपी सिंथेसाइज्ड होगी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी। इंडिया की करेंसी पता कहाँ है? आरबीआई रिलीज करता है। हमारी करेंसी माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये इसमें एक यूनिक फीचर है, पता है अभी तक जितने सेल ऑर्गेनल्स मैंने नाम लिए ना, इसकी खास बात क्या होगी? सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि खुद का राइबोसोम है इसके पास, तो ये प्रोटीन बना सकता है, आपको बताया मैंने। और इसका खुद का न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ये इसको बाकियों से अलग करता है। डबली स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन है, इनर फोल्डेड है, क्रिस्टे। नेक्स्ट आप पढ़ोगे अबाउट प्लास्टिड, आपने नाम सुना है क्लोरोप्लास्ट, राइट? क्लोरोफिल जिसके पास ग्रीन, ल्यूकोप्लास्ट सुनेंगे, और एक क्रोमोप्लास्ट। आई थिंक ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट बाकी कलर्स आते हैं ग्रीन। और ये भी सेल्फ ऑटोनोमस है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स है, तो प्रोटीन बना सकता है, और इसके पास अपना डीएनए है। और लास्ट ऑफ दिस होगा वैक्यूल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्लांट का। जो वैक्यूल होता है ना, वो नंबर में कम होता है लेकिन साइज में बड़ा। This is what this chapter will demand. And as per examination point of view, you will definitely going to get a highlighting question of this is differentiate between plant cell, जो 8th में भी था, and animal cell with diagram. और मेरा वीडियोस जैसे मैं लाला के आपको दिखाता हूँ, तो we will be trying a video to share with you in which step wise कैसे प्लांट सेल बनाया जाएगा, प्लांट सेल को कैसे हम बना सकते हैं निमोनिक्स के थ्रू, कैसे हेक्सागन होता है, और लेबलिंग और सेल। डायग्राम की बात करें तो इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल ही सबसे हॉट रहेगा। नॉलेज के लिए मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाकर अपन देखेंगे, और एक क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस आता है, एग्जाम में आता ही आता है। प्लांट सेल, एनिमल सेल सुपर हिट है। कुछ थॉट क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको हाइपो, हाइपर, आइसो बनाया, उसी तरह टर्म आएगा प्लाज्मोलिसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। आई होप ये थ्योरी प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर बिफोर वी स्टार्ट कैन हेल्प यू, एंड आई रिक्वेस्ट यू इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग और आपको इस तरह का लाइक लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे हर चीज वीडियोस की प्रेजेंटेशन एंड ऑल, इसको सब्सक्राइब भी करो। और कोई भी मेरा अगर वीडियोस देख रहे हो तो पहला रिक्वेस्ट उसको एंड तक देखो, और उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क मी एट माय पर्सनल नंबर यू हैव। विद दिस नोट I've tried to cover up that lost class. Thank you. Good night. Take care.